दो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई। उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, दो बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर एक दो बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। क्योंकि एक मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। सर इंसानियत कहां है बताइए। Sir, I also go for public meetings, sir, where thousands of people come. I make sure that there is no stampede, sir. I make sure that the security around me doesn't push the people so that, nobody comes under the stampede, sir. I went for the Maharashtra election, thousands and lakhs of people were there, sir. And I made sure that nobody is pushed. Sir, I remember, sir, once my security official, by protecting me, his cap had fallen down. He had to do his duty, he was protecting me. So I went and I picked up his cap, sir. But here you see, sir, one lady dies, two small children are under stampede, one is under coma, and that gentleman doesn't even bother to go and ask and see, sir, at that moment, and goes waving like that. If I am wrong, sir, please correct me, sir. If I am wrong, please correct me, sir. Mr. Revant Reddy Sahab, for giving the details of the incident happened and making it very clear, sir. On behalf of AIMIM party, sir, I would say that we support the action taken by the government and the police, sir. And sir, on behalf of AIMIM party, sir, we are with the family and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah gives a recovery to that child, sir. And I also pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah उनके बच्चों को और उनके हस्बैंड को, वो उनकी वाइफ और माँ के मरने का उनको अल्लाह सब्र दे। मैं ये कहूँगा सर। एंड सर, कमिंग ऑन द डिस्कशन ऑन राइतु भरोसा, आई थिंक मोस्ट ऑफ the questions which I was wanting to ask has been already said and already been made clear. So I do not want to make any other further statement, sir, but I'll just conclude by saying just 3 or 4 lines. And the most important thing which I wanted to just bring, sir, the Honorable Minister Sahab was, at the beginning was asking if any suggestions or any advice are there can be put across. I would say, sir, my only suggestion and advice is that you already have declared a manifesto. I do not want anything less than your manifesto. Do not want anything more than your manifesto. That's it, sir. This is what, and I hope that everything has been well addressed. One thing I just want is that, sir, there is one sentence which is being read. So understanding of that one particular sentence might be different of mine, might be carrying a different, opinion by the writers. So I request the Honorable Minister Sahab to kindly read your manifesto, explain what do you mean by in that, so that I could understand it more and implement it, not less, not more. Lastly, sir, one request, sir. Sir, I have been fighting from last 3 years, sir. The then Chief Minister Sahab also had assured in the House then, stating that, yes, we will give you the permission. But sir, अब मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बहुत इज्जत करता हूं केसीआर साहब की, बहुत बड़े लीडर है, मैं बहुत बड़ा छोटा आदमी हूं, मगर सर एक तरफ हाउस में बोल दिए परमिशन दे देंगे फ्रूट मार्केट के लिए, जियो निकाल दिए। जियो हमारे हाथ में लगने से पहले ऐसे लोगों के हाथ को लग गया, वो जाके कोर्ट में केस डाल दिए। इधर हम भी खुश, उधर उन्हों भी खुश। ऐसे रहता था सब काम वो गवर्नमेंट का। सर मैं बार बार ऑनरेबल सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करा, हाउस में भी बोला, सर
वो फ्रूट मार्केट वाले गरीब लोग साहब पैसे जमा करके स्टॉल्स डाल लिए सर, 2 करोड़ रुपया खर्च करके वो लोग वहां पे वो चिलिंग का एक यूनिट होता है वो डाल लिए। 1.5 साल से सर वो लोग परेशान है, कारोबार नहीं कर सक रहे सर। विद ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग, व्हेनेवर द परमानेंट फ्रूट मार्केट विल कम, आई विल मेक श्योर सर कि दे विल शिफ्ट आउट एंड दे विल गो वेर एवर यू से सर। जब तक वो मार्केट बनती है उनको कारोबार शुरू करने की इजाजत देने के लिए मैं आपके जरिए हुकूमत से अपील कर रहा हूं। गरीब बहुत परेशान है सर, बेरोजगार है, उनको फ्रूट का कारोबार करने के लिए चिट्ठी दे दीजिए सर, वहां होगा। और जिस दिन आप बोलेंगे यहां से चले जाओ, हम सब जने वहां से जाएंगे, उनको वहां पे लेके जाके उस मार्केट में डाल देते हैं सर। కూనంనేని సాంబశివరావు గారు. ఒక్క నిమిషం. సార్ ముఖ్యమంత్రి గారు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారి విషయంలో చాలాసార్లు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. నేను మంత్రి గారికి సూచన చేస్తున్నా, హైకోర్టులో కేసు ఉండి స్టే ఉండడం వల్ల మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళలేకపోయినాం. మీరు అధికారులకు సూచన చేసి హైకోర్టులో రిజర్వ్ ఫర్ జడ్జిమెంట్ ఉన్నట్టుంది, అది ఆ కేసును ఒకసారి జడ్జిమెంట్ని ఇమ్మీడియట్గా అడ్వకేట్ జనరల్కి చెప్పి ఇనిషియేట్ చేసి జడ్జిమెంట్ తీసుకోండి. ఒకవేళ ఆ జడ్జిమెంట్ వచ్చినాక ఇమ్మీడియట్గా అదైతే రీజనబుల్ ఇష్యూ, దాన్ని ఇమ్మీడియట్ वही बात बोल रहा मैं, एडवोकेट जनरल साहब से बात कर लेके उसका रास्ता निकाल के हम जरूर बिफोर संक्रांति आई विल टेक ए फाइनल डिसीजन. थैंक यू. కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి గారు. ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं जो अकबरुद्दीन साहब जो मुद्दा उठाए थे वो सिनेमा इंडस्ट्री का मिनिस्टर भी हूँ, मैं भी बहुत दुखी हूँ। उस दिन हमारा सिनेमा इंडस्ट्री का मिनिस्टर होने से अभी जो हमारा सीएम साहब पूरा उसका कैसा कैसा हुआ पूरा मालूम हुआ। वो इंसिडेंट होने के बाद नेक्स्ट डे मैं ही उसको प्रेस पे जाके बोले थे, दिस इज नॉट करेक्ट, विदाउट परमिशन यू कांट गो टू द थिएटर। उसमें वो कंपेंसेशन भी अनाउंस दिया बोल के नहीं दिए, कोई देखने को नहीं है। मैं उसी दिन दिया, फ्यूचर में आइंदा नो बेनिफिट शोज इन द नाइट बिफोर रिलीजिंग द डेट, कोई बेनिफिट शोज नहीं देंगे, कोई नया रेट्स नहीं देंगे, इंडस्ट्री को प्रमोट के वास्ते कुछ फैसिलिटीज परमिशन देंगे, मगर ऐसा बेनिफिट जैसे कि पब्लिक को मराना, वो भी रेवती बोल के उसका हस्बैंड का लिवर डैमेज हो तो वो लिवर दे के हस्बैंड को बचा लिए बेचारा। वो रेवती हमारा सिस्टर जो मर गए, वो बच्ची अभी वेंटिलेटर में। मैं हॉस्पिटल वाला बोला कोई सिनेमा थिएटर वाला दे देगा, कुछ पेमेंट है तो मैं ही देऊंगा, मैं पर्सनल से देऊंगा, मगर ऐसा तो भी कोशिश करो बोल के वही वो लोग भी मैं बोल दिया। जो अकबरुद्दीन साहब उठा दिया, मैं उसको आपके तरफ से उसको बता दूँ, देयर इज नो बेनिफिट शोज विदाउट एनी परमिशन, नो एक्टर विल गो टू द थिएटर. थैंक यू.